دنیا کا ینگسٹ اناٹمی ایکسپرٹ ڈاکٹر محمد ایاد، جس کی عمر صرف 4 سال ہے، یہ پاکستان کے نہیں دنیا کی تاریخ کے ینگسٹ MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر محمد ایاد پاکستان کے لیے کئی اعزازات حاصل کر چکے ہیں۔ صرف 2.5 سال کی عمر میں 2 ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی حاصل کر چکی ہیں، 1000 بکس ریڈ کرنے کا کارنامہ بھی انجام دے چکی ہیں۔ انسان کے دل کی دھڑکن کیسے کام کرتی ہے، انسان کا ہاضمہ سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو آپ کا کھانا ہضم کیسے ہوتا ہے، انسان کا لیور کیسے کام کرتا ہے، ڈاکٹر محمد ایاد سے سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ جاپان میں جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ انوائٹڈ ہیں، ڈاکٹر محمد ایاد کو بھی وہاں پر انوائٹ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد ایاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اتنی کم ایج میں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے کارنامے کیسے دے لیتے ہیں۔ اس وقت انسان کا پورا دماغ میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ سم ٹائم ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ یار آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، دماغ کیسے کام کر رہا ہے، یہ ہم ڈاکٹر محمد ایاد سے جانیں گے۔ کیسے ورک کرتا ہے آپ کا برین، اور برین کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں؟ It is our computer. It is our computer. Yes. Okay. Please explain me. This is frontal lobe. It tells us how to walk, how to run, and how to speak. And this? Parietal lobe. It tells us pinch. And this in purple color? And gold. Occipital lobe. It's our camera. ڈاکٹر محمد ایاد صاحب جو ہیں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ Hypothalamus, pituitary gland, cerebellum, and brainstem. اوکے، زبردست ہو گیا جی۔ آپ کا دماغ جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے اور دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، کام کرتا ہے، یعنی کہ برین اگر آپ کا چل رہا ہے تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں، کیونکہ آپ اپنے دماغ سے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹیتھ کون سے ٹیتھ سے بائٹ کرتے ہیں؟ Molar, مولر، premolar, پی مولر، incisor, canines. اینڈ وٹ از دس؟ Tongue. ٹانگ۔ اس زبان کے ساتھ جھوٹ مت بولا کریں۔ چلیں نیکسٹ، انسان کھانا تو کھا لیتا ہے لیکن وہ ہاضمہ سسٹم کیسے ہوتا ہے؟ عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، صرف کھانا کھانا جانتے ہیں، ہضم کیسے ہوتا ہے یہ نہیں جانتے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے جسم کے اندر جو ہاضمہ سسٹم ہے، جو آپ کے کھانے کو ہضم کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پلیز ایکسپلین می۔ So first we bite with our molar, canines and incisors, then we chew with our molar and premolar, then a salivary gland make it into saliva, then it becomes bolus, then it goes in the esophagus, then it goes to stomach, then the gastric juice absorb, breaks into tiny pieces, then it goes to small intestine, that the liver and pancreas help it to absorb juice from the body, and it goes to the waste, it go to large intestine, then it goes to bladder. زبردست ہو گیا جی، کمال ہو گیا ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھائی ہے، اور یقین کریں یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا جینیس بچہ ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ دنیا حیران ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین ٹیلنٹ سے نوازا ہے۔ اینوٹمی سسٹم ہے، اس کے ڈاکٹر صاحب ایکسپرٹ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انسان کے اینوٹمی سسٹم میں 12 سسٹمز ہوتے ہیں۔ یہ 12 مختلف سسٹمز ہوتے ہیں جو انسان کے اعضاء کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں۔ یہ انسان کے جسم کو کس طریقے سے ورک کرواتے ہیں آئیے جانتے ہیں۔ یہاں سے ہم کوئی بھی چیز ایک پک کریں گے اور ڈاکٹر محمد ایاد صاحب سے جانیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں، اس کو ایکسپلین کریں گے؟ ہارٹ، پلیز ایکسپلین۔ جو دل کی بات ہوتی ہے نا وہ دل سے نکلتی ہے، تو انسان کا دل کس طریقے سے ورک کرتا ہے؟ Vena cava, aorta, artery, mitral, tricuspid, atrium, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. ڈاکٹر صاحب ہاؤ مینی سیگمنٹس آر ہارٹ؟ 4. یہ جی انسان کا ایک سسٹم ہے، اس کے اندر 2 سسٹم نظر آ رہے ہیں، یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کون کون سے پارٹس اس جسم میں پائے جاتے ہیں؟ محمد پلیز ایکسپلین۔ So this one is, there's two systems. یہ کون سا سسٹم ہے ڈاکٹر صاحب؟ Respiratory system. ریسپریٹری سسٹم۔ ہاؤ ٹو ورک ریسپریٹری سسٹم؟ It helps us to breathe. اینڈ وٹ از دس؟ Urinary system. اینڈ دس؟ Kidney. اس کڈنی کا کیا سائز ہے ڈاکٹر صاحب؟ 12 centimeters long and
6 centimeters wide. इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियां हैं, उन हड्डियों के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद साहब के पास इनका मिस्टर बोनी स्केलेट मौजूद है, इससे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी हड्डियां हैं। इन्होंने मुख्तलिफ कलर्स इस पर किए हुए हैं। Skull, cranium, frontal bone, patelloboccipital bone. ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। एंड दिस Tarsus, metatarsus. कोई सी भी हम पूछ सकते हैं जी डॉक्टर मोहम्मद। एंड व्हाट इज दिस? Phalanges. ओके, एंड दिस? Femur. एंड दिस? Patella. पटेला। एनाटॉमी एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद अयाद साहब की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जाता है कि वालदा की दुआओं से इंसान ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर मोहम्मद अयाद सिर्फ 2 साल की उम्र में डॉक्टरेट की 2 एजाज़ी डिग्रियाँ हासिल करते हैं, 40 से ज़ायद इंटरनेशनल और नेशनल सर्टिफिकेट हासिल करके दुनिया को हैरान कर देते हैं, 1000 बुक्स रीड करते हैं। अब जापान में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट को इन्वाइट किया हुआ है। वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से 4 साल डॉक्टर मोहम्मद अयाद को इनवाइट किया गया है। मैडम ये बताइएगा कि माशाल्लाह हमने देखा कि 4 साल की उम्र में एनाटॉमी एक्सपर्ट बन गया, दुनिया का यंगेस्ट MBBS स्टूडेंट। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये इसको माशाल्लाह से ये एजाज़ हासिल है कि ये MBBS के जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है बच्चों को एनाटॉमी के बारे में, जो MBBS कह रहे हैं उनको ये चीज़ का आइडिया होगा कि MBBS के पहले साल में पढ़ाया जाता है कि हमारा इंसानी जिस्म जो है वो कैसे काम करता है। स्पेशलाइजेशन तो आप बाद में करते हैं, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारा जिस्म असल में काम कैसे करता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मोहम्मद को इसी एज में ये चीज़ों का इदराक हासिल है और ये चीज़ें इसको पता हैं। ज़बरदस्त। ये जो चीज़ें हैं, कहा जाता है कि जब इंसान MBBS में दाखिला लेता है, जो उनके पहले 1-2 साल होते हैं उसमें ये चीज़ों पर वो मुकम्मल अबूर हासिल करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अयाद माशाल्लाह 4 साल की उम्र में इन चीज़ों के हवाले से जानते हैं। ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जी जी बिल्कुल। ये मुख्तलिफ जो एनिमल्स, ये कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ वाटर एनिमल्स होते हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं, जैसे ये तो मतलब वो चीज़ें हैं जैसे फ़िश है, टोड है, मतलब इस तरह से डिफरेंट चीज़ें होती है जो इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। कहा जाता है कि इंसान जब डॉक्टर बनने लगता है तो वो एक्सपेरिमेंट फ्रॉग पर करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पंजाबी में डड्डू कहते हैं जी जी और फ्रॉग कहते हैं फिर इंग्लिश में, तो ये उसका ढांचा मौजूद है। तो डॉक्टर साहब भी इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी, असल में हमारे पाकिस्तान में ये है कि लैब्स तक इसका एक्सेस हासिल नहीं है, क्योंकि देखिए मैं एज अ मदर उतना ही इसको गाइड कर सकती हूँ जितना ये मुझे गाइड करता है, और मैं इससे सीख के तो उसको दोबारा से रिपीट कर सकती हूँ। जो जब ये किसी लैब पे एक्सेस हासिल करेगा तो उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जैसे काटना और चीरना, फाड़ना, ये सारा कुछ ये फिर डॉक्टर्स की मौजूदगी में हो सकता है, या किसी भी जो एक कहते हैं ना कि जो प्रोफेशनल है उनकी मौजूदगी में हो सकता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये भी करेंगे। हमने देखा कि डॉक्टर साहब को इनवाइट किया गया जापान में, वो कौन सा इवेंट है और डॉक्टर साहब को पाकिस्तान से इनवाइट किया गया? जी बिल्कुल, जापान में दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं जीनियस कन्वेंशन के अंदर, जहाँ पे दुनिया के जितने भी जो एक्सपर्ट्स होंगे जो एनाटॉमी को जानते होंगे। एक होता है इंटरनेशनल एनाटॉमी ओलंपियाड, उसमें भी मोहम्मद को इनवाइट किया गया, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े MBBS के स्टूडेंट्स होंगे, और फिर साइंटिस्ट जापान में आ रहे हैं जीनियस कन्वेंशन में, वहाँ पे भी मोहम्मद को इनवाइट किया गया। और ये वहाँ पे सबसे यंगेस्ट होंगे जो इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे वहाँ से जीत के आते हैं या नहीं, ये तो फिर आने वाला टाइम बताएगा। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया जी। डॉक्टर मोहम्मद अयाद एनाटॉमी एक्सपर्ट, दुनिया के यंगेस्ट MBBS के स्टूडेंट, आज से 1 साल पहले 1000 बुक्स रीड की हैं, सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर ऐसे टैलेंट को, बासलाहियत लोगों को शक की निगाह से देखा जाता है, हम उनके टैलेंट को पहचानते नहीं हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से और पाकिस्तान के तमाम अदारों से यही रिक्वेस्ट है और उम्मीद है कि वो इस बच्चे का भरपूर साथ देंगे और ये बच्चा आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करेगा। फ़िलहाल इजाज़त दें। ये सारे सिस्टम का यकीन करें मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं यहाँ पर आया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि डॉक्टर मोहम्मद अयाद माशाल्लाह इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं और दुनिया भर में कोई इस उम्र में बच्चा इन चीज़ों के हवाले से जानता भी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।